مجھے صرف یہ آپ نے میرے والد کے اوپر کیسے انگلی اٹھا لی. اپنے ہی اٹھ کے کہیں گے کہ جی اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں ان کے, تو پھر ظاہری بات ہے لوگوں کا منہ کھلے گا. اگر میں کچھ بولوں گی نا, لوگ مجھے کہہ دیں گے کہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بھولو کا بیٹا ہوں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تو پھر آپ گجرالے کیا کرنے جاتے ہیں رفیع لون؟ اچھی بات ہے, نشان لگا رہی ہیں آپ. دیکھو آپ نے شروع کی ہے, اینڈ بھی پھر آپ ہی کرو گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ناصر بھولو صاحب کیا جائیداد کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. میں اس وقت موجود ہوں مریم جھارا کے ساتھ, جو رستم پاکستان جھارا پہلوان کی بیٹی ہیں. آج کل ایک کنٹروورسی سی سٹارٹ ہوئی ہے, اسی حوالے سے ان سے جاننے کے لیے آئے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ. میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی اور اس میں ناصر بھولو صاحب وہ کچھ فرما رہے تھے, وہ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے, اس سے پردہ آج آپ نے اٹھانا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے, اب دیکھے بھی آئی ہوں, کیونکہ یہ غلط بات ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فیملی کا کوئی میٹر نہیں ہے, آپ جو مرضی کرتے رہو, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے ساتھ. بات اصل یہ ہے کہ آپ نے میرے والد کو جو بے ادب بولا تھا نا, اس وجہ سے مجھے ہوا ہے. اگر میں پہلے بھی کہہ چکی, اگر وہ اتنے بے ادب ہوتے والد میرے, تو 34 سال اب ان کی برسی گزری ہے 10 سپٹمبر کو, 34 سال ہو گئے. تو 34 سال میں تو جو بے ادب ہوتا ہے, کہتے ہیں نا جو بے ادب ہوتا ہے, جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, تو اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا دنیا سے. اچھا مریم جھارا, یہ بے ادب والی بات کس نے کہی؟ یہ ناصر ماموں نے, ہے میرے ابو کے پھپھو کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی حالانکہ زہیب بھائی نے 1000 دفعہ پوچھا تھا, بار بار اسٹارٹنگ میں بھی پوچھا جہرا کیسا تھا, کشتی میں جہرا کیسا تھا, اینڈ انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا آپ کو پتہ ہے بے ادب ہونا. بے ادب کیسے تھے وہ؟ بے ادب ہوتے تو وہ آج اتنا نام نہ ہوتا, کب کا ختم ہو گیا ہوتا. بے شک. تو بے ادب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر اپنے ہی اٹھ کے کہیں گے کہ جی اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں ان کے, تو پھر ظاہری بات ہے لوگوں کا منہ کھلے گا. لوگوں نے کہنا ہاں جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جھارا بے ادب تھا, گھر والے اٹھ کے کہہ رہے ہیں, تو پھر سچی میں وہ ایسا ہوگا. ناصر پہلوان کہہ لیں یا ناصر صاحب کہہ لیں, ناصر بھولو لگاتے ہیں اپنے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ میں بھولو کا بیٹا ہوں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اپنے ان کے والد ہیں, رفیع لون ہیں, گجرالہ کے رہنے والے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اور لاکھوں میں میرے پاس میسیجز آئے ہیں جنہوں نے حقیقت بھی کہا ہے کہ یہ رفیع لون کے ہی بیٹے ہیں, اور ان کے کیا کہتے ہیں گجرالہ کے رہنے والے ہیں. یہ میری پھپھا ہیں دویر لون, ان کے چھوٹے بھائی ہیں. تو پھر بھولو صاحب کے کیا لگے گی؟ ان کی, میں نے آپ کو بتایا ان کی سسٹر کے بیٹے ہیں. اب ان کی جن کی اولاد نہیں ہوگی, اگر آپ نے دیکھے نا قرآن میں بھی ہے, اب اپنے والد کا نام نہیں چینج کر سکتے. اگر آپ اپنے والد کا نام چینج کرو گے تو اس میں گناہ ہے. اچھا, آپ قرآن کی باتوں کو نہیں ٹال سکتے. مریم جھارا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھولو پہلوان صاحب تھے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ نہیں, بھولو دادا ابو کی نہیں تھی. پکی بات ہے؟ ہاں جی, میں اس فیملی کی ہوں, مجھے نہیں پتا. یعنی کہ آپ کے دادا ابو کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو پھر ہو سکتا ہے وہ انہیں استاد کی حیثیت سے کہتے ہوں کہ یہ میرے روحانی استاد ہیں, والد ہیں. نہیں, بے شک عزت کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, ان کے ماموں تھے, اب انہوں نے ان کو لے کے پالا ہے تو اولاد بھی بن گئی, لیکن آپ حق نہیں جتا سکتے ان کی کسی چیز پہ. اگر وہ جب زندہ ہوتے, لے کے پالا؟ ہاں جی, پھپھو کا بیٹے تھے تو انہوں نے اپنی بہن سے لیا تھا ان کو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی چیزیں پہ بھی میرا حق ہے, تو یہ بھی نہیں ہے آپ کا حق. اگر جب وہ زندہ ہوتے بولو دادا ابو, تو اب آپ لے سکتے تھے, ہمارا بھی بولنا نہیں بنتا تھا, کیونکہ وہ حیات ہوتے. اب جب وہ ہے نہیں, تو اس چیز کا تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ گناہ ہے کسی کا مال کھانا. یہ سب رستم برادرز تھے, تو یہ حصہ سارا رستم برادر مطلب ان کی اولادوں کو جائے گا. مجھے حصے سے بھی کوئی نہیں ہے. چلیں, مجھے صرف یہ آپ نے میرے والد کے اوپر کیسے انگلی اٹھا لی. آپ نے اٹھائی تو مجھے لاکھوں میں میسیج آئے ہیں کہ آپ کے والد آگے سے آپ کسی کو طنز کرتے ہو کہ آپ کے والد کیا کہتے ہیں بے ادب تھے, یہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا. کیسے کیا, اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو آپ اللہ اور اس مرے ہوئے کا معاملہ ہے, آپ کیسے کسی کو دنیا میں کر سکتے ہو؟ اپنی آخرت بھول گئے ہیں. یہ ناصر صاحب نے کہا؟ ہاں جی, یہ ناصر ماموں نے بولا. یہ اس پوڈ کاسٹ میں جو زہیب بٹ صاحب نے کی ہے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ نے میرے والد کو بے ادب بولا, اس چیز سے مجھے غصہ آیا. اگر میں
मैं अपने दादा अबू की मैं बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, मेरे बड़े हैं, इन्हीं की वजह से हमें इज़्ज़त मिली है। तो मैं अगर उनको उठ के बोलूँगी ना तो लोगों ने भी कहना कि हाँ ये तो सच कह रही है, उनकी बेटी है। तो मैं अगर आपने मेरे वालिद को बोला है तो मुझे लोगों ने हज़ारों ने मैसेज करके कहा है, अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। इंसान बनाए हैं, मिट्टी के बनाए हुए हैं, कोई पत्थर के नहीं है कि बर्दाश्त करी जाए लोगों की बातें। क्या जारा पहलवान जो रुस्तमे पाकिस्तान थे वो वाकई बेअदब थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले थे। तो आपने मेरे एक और पॉडकास्ट हुआ था ज़ोहेब भट्ट का, मेरे नईम दादा अबू के साथ और चाचू के साथ। तो मेरे दादा अबू ने ही आके कहा था कि मैंने जारे को थप्पड़ मारे थे तो उसकी मजाल नहीं थी कि मेरे ऊपर मुंह उठा के देख ले। यानी वो इतने बाअदब थे? इतने बाअदब थे, अपनी जब कुश्ती लड़ने जाते थे अपनी वालदा के पाँव चूम के दबा के जाते थे। माशाल्लाह। तो इतने ही बाअदब थे तो उनका नाम अब तक है। हाँ और ये तो चल रहा है। और मैं ये कहूँगी कि एक और क्वेश्चन किया था किसी ने मुझे कहा कि ये क्या बोल रही है अल्लाह और नबी के बाद। तो ज़ाहिर बात है जिसने दुनिया बनाई है उस अल्लाह और नबी के बाद ही हमारे ख़ानदान का नाम रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा, पूरी दुनिया में रहेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये नासिर भोलू साहब क्या जायदाद के लिए ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं या कि असल मामला है क्या? असल मामले का तो मुझे पता नहीं है। देखिए अगर कर भी रहे हैं तो फिर उन्होंने ही अपने आप को इधर आके पूरी दुनिया के सामने कहा कि आप दुनिया इधर की उधर कर लो तो मैं नाम नहीं बदलूंगा अपने बाप का। आप अल्लाह की चीज़ों को कैसे बदल सकते हो, कुरान को कैसे बदल सकते हो? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जारा पहलवान के भाई कितने भाई हयात हैं अभी तक? मेरे ताया अबू फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र ये पीछे है। और चाचू हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। बस एक ही भाई हैं अब। क्या और नाम है उनका? उनका आबिद असलम। आबिद असलम। क्या आबिद असलम साहब को भी उतनी ही तकलीफ़ पहुंची जारा पहलवान को बेअदब कहने पे जितनी आपको पहुंची? अब ज़ाहिर बात है मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे तो ज़्यादा होगी, लेकिन वो तो उनके भाई हैं, छोटे भाई थे। उनके लिए सब कुछ, मेरे वालिद बहुत प्यार करते थे अपने भाई से। तो ज़ाहिर बात है उनको भी गुस्सा आया है। अगर उन्होंने कैमरे पे नहीं बोला तो उन्होंने उनको वैसे ज़रूर बोला है। क्या नासिर भोलू साहब को किसी ने अप्रोच किया कि आपने ये जो वर्ड कहे हैं ये सही नहीं है? नहीं, आपने अगर पूरा पॉडकास्ट देखा है तो आपने उसमें ये भी देखा होगा कि वो अपने अलावा किसी और की तारीफ़ सुनना ही नहीं चाहते। उनमें मैं ही बहुत है। मैं हूँ, मेरा दादा है, मेरा नाना है, मेरा चाचे ताए हैं। तो जारा पहलवान बना था ना, जो उन्होंने मेहनत की है तो जारे पहलवान आया ना। उनके जो चचा हैं उन्होंने ही जारा पहलवान बनाया? हाँ जी, इमाम बख्श थे, उनके 5 चचा ताया थे जिन्होंने जारा पहलवान तैयार किया। नोकी की कुश्ती पे ही तैयार हुए थे। पहली कुश्ती जवाल के साथ हुई थी और फिर उसके बाद नोकी के साथ। तो इतना जारा पहलवान तैयार किया था। तो बनाना जारा पहलवान अगर इतना बेअदब होता तो उसी टाइम कह देता जब नोकी के साथ कुश्ती करनी थी। आपने एक ये भी बात की थी कि जी मैं मिट्टी का रेसलर नहीं हूँ, मुझे मिट्टी से एलर्जी है। ठीक है, आप अगर मिट्टी से आपको एलर्जी है तो आपने जाना भी तो मिट्टी में ही है। क्या नासिर भोलू साहब का कोई पहलवानी का बैकग्राउंड है? वो फ्री स्टाइल रेसलर थे। उनकी कुश्ती मैंने तो मुश्किल से एक ही देखी होगी यूट्यूब पे, बाकी तो मैंने नहीं देखी और ना मुझे लगता है। तो जारा और जो दूसरे बड़े रुस्तमे हिंद हैं उन्हीं के नाम हैं, गामा और जारा के? गामा और जारा, हाँ जी उन्हीं के हैं। क्योंकि देखो ना, जो अदब वाला होता है, जो जब आप छोटे बच्चों को प्यार करोगे, उनको भी इज़्ज़त दोगे, बड़ों के साथ प्यार करोगे, एहतराम करोगे, आपको तभी ही इज़्ज़त मिलती है। वैसे आपको इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो इतने इज़्ज़त वाले और बाअदब वाले थे तो इज़्ज़त अब तक है। गामे दादा अबू और अबू के बाद लास्ट नाम मेरे अबू का था, गामे दादा अबू से ले ले और अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक है नाम। मैंने सुना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आपके वालिद का नाम और गामा पहलवान का हाँ नाम जी, लिया जाता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लिया जाता है। और अब जो किताब है ताकत के हिसाब से उनमें भी नाम आता है मेरे वालिद का, जारा पहलवान। हाँ जी, जारा पहलवान का ताकत के नाम पे आता है। तो अब तक अगर नाम है तो किताबें क्यों छप रही हैं उनकी? तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से नासिर भोलू साहब को क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनको, अगर मैं कुछ बोलूँगी ना, लोग मुझे कह देंगे कि अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करती हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप ज़रा सोच समझ के बात किया करें। आप तो मेरे अब्बू से बड़े हैं माशाल्लाह, आपने उनके साथ भी वक्त गुजारा हुआ है, भाइयों की तरह भी रहे हैं। तो
थोड़ा देख के किया करें, किसी मरे हुए को बोलना या उनकी इज़्ज़त ख़राब करना मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे बड़े हो, मैं इज़्ज़त करती हूँ और करती रहूँगी, और मरे हुए को जलील करके कुछ नहीं मिलता। नहीं तो मुझे ये बताइएगा कि वो क्लेम करते हैं कि मैं भोलू का बेटा हूँ, तो वो आप कह रही हैं कि उनके वालिद साहब का जो नाम है वो क्या नाम बता रही हैं? रफ़ी लोन। रफ़ी लोन साहब के बेटे हैं। इसका कोई एविडेंस आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास तस्वीर है, मैं पॉडकास्ट में दिखा आई हूँ। आप कह रहे थे, इन्होंने एक बात की थी कि मुझे नहीं पता, मेरे कज़न कहते हैं, चाचे ताए के बच्चे कहते हैं कि मैं लेके पाला हुआ हूँ। ठीक है, आप माशाल्लाह इतने जवान उम्र से लग रहे हैं, अपने वालिद के साथ खड़े हुए हैं, तो आपको नहीं पता था ये आपके वालिद हैं? सबूत तो मेरे पास हैं, काफ़ी हैं, लेकिन बात ये है आप मरे हो को ना जलील करना छोड़ दें। अगर आपका अपना अपना नाम है, आप अपना करो। क्या आपने कभी नासिर भोलू साहब का आईडी कार्ड देखा जिस पे वल्दियत के खाने में भोलू साहब की वल्दियत है या लोन साहब की वल्दियत है? ये आपने अच्छा किया, लेकिन मैंने देखा नहीं है। ये ज़रूर मैं देखूंगी, क्योंकि ओरिजिनल वालिद के नाम से ही कार्ड बनता है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगी कि कार्ड अपने रफ़ी लोन के नाम से है कि भोलू पहलवान के नाम से। अब पीछे गवर्नमेंट खाता तो नहीं बदल सकती ना कि आपके वालिद का नाम ये है तो आप सारी सी ये बात रख है। लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक आईडी कार्ड होगा फिर आईडी कार्ड पर पूरी एक ट्री बनेगी, एक tree बनती है, उससे सारे एफ आर सी निकल आता है। रिपोर्ट हाँ जी, निकलेगी, हाँ जी। फैमिली मुकम्मल डाटा निकलेगा, tree कितनी निकलेगा। फैमिली ट्री बनेगी, उसमें कितने वालद हैं अच्छा, ये आपने मुझे आइडिया दिया, मैं देखूंगी। वालद का क्या नाम है, वालदा का क्या नाम है, वालद की कितनी शादियां हैं, कितने बहनें हैं, हाँ कितने जी, भाई बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कितने फोत अब हो आप चुके ये हैं। तो चेंज नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट की चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। बेशक आप कुरानी आयत को चेंज करने चले हो, क्योंकि मैं अपने वालिद बिल्लाहि मिन नाम नहीं बदल सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा नाम वही रहेगा, भोलू रहेगा। तो फिर नासिर भोलू रहेगा। फिर आप आखिरत में क्या नासिर करोगे? साहब ने क्लेम किया। हाँ जी। अच्छा, मैंने नहीं सुना। नहीं, फिर आप आखिरत में क्या करोगे, बस मुझे ये बता दो। आखिरत में अल्लाह के आगे पैसे पेश करेंगे? ऐसी दुनिया भी रह जाना, सब कुछ भी नहीं जाना। सारे मामलात नासिर भोलू साहब बेशक आपकी फैमिली का हिस्सा हैं और भोलू साहब की इज़्ज़त भी करते हैं, आप भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही हैं, उन्हें दादा अबू कह के या ताया अबू कह के मुखातब कर रही हैं। नहीं, मेरे हैं ताया ही हैं, अबू से बड़े हैं और पुप्पो के बेटे हैं। ज़ाहिर बात है इज़्ज़त की जगह पे हैं, लेकिन आप यकीन माने पीछे मेरे अबू की कब्र भी है, मैं खुले आसमान के नीचे भी खड़ी हूँ, मुझे उनसे कुछ नहीं था। आप जो मर्ज़ी बोलते, पर आपको चाहिए था आप मेरे अबू को इज़्ज़त से बुलाते। अच्छा, जारा पहलवान का इतना बड़ा नाम हुआ है, रुस्तम पाकिस्तान, जारा पहलवान। नाजरीन, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, मरियम जारा, जो जारा पहलवान की औलाद है, सगी औलाद है। जारा पहलवान की कितनी प्रॉपर्टी है? अब ये आप देखें ना, मैं 1.5 साल की थी जब अबू फोत हो गए। ठीक है, अगर रुस्तम ब्रदर्स में से सबको हिस्से मिल रहे हैं तो हमें तो सिर्फ 2 ज़मीनें मिली हैं। अब उन 2 ज़मीनों में क्या यही चीज़ थी बस भाइयों की? क्या क्या मिला है? बस 2 ज़मीनें, एक ये बाहर है, एक उधर नाले के पास थी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।